ویلکم بیک۔ شہنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر دیں آپ کو، آئی جی پی پنجاب راؤ سردار علی خان کے ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا فیصل گلزار نے حجرہ شاہ مقیم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ مزید دیکھتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے راشد علی نوشاہی کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کے ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا فیصل گلزار نے حجرہ شاہ مقیم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ایس ایچ او حجرہ شاہ مقیم سرکل، سائلین اور صحافی تنظیموں سمیت صدر ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ راؤ مشتاق قادر خان سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری کے دوران پیش ہونے والے سائلین کے مسائل سن کر متعلقہ افسران کو درخواستیں مارک کی گئیں۔ ڈی پی او اوکاڑا فیصل گلزار نے متعلقہ افسران کو انصاف کی فراہمی یقینی بناتے ہوئے داد رسی کرنے کی ہدایت کی۔ کھلی کچہری کے شرکاء سے علاقہ میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل کے متعلق دریافت کیا۔ کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ قانون کے برابر نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ راشد علی قمر نشائی، میٹرو ون نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ بھوانا یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ کابینہ کا آخری اجلاس آستانہ سادات پر منعقد ہوا، جس میں بہترین رپورٹنگ کرنے پر ممبران پریس کلب میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ممبران پریس کلب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، جانیے مدثر حسین کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ بھوانا و یونین آف جرنلسٹ کی موجودہ کابینہ کا آخری اجلاس آستانہ سادات پر منعقد ہوا، جس میں بہترین رپورٹنگ کرنے پر ممبران پریس کلب میں تعارفی سرٹیفکیٹ اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ممبران پریس کلب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ 2020-2021 کا یہ آخری اجلاس تھا اور الحمدللہ بڑا کامیاب رہا اجلاس، اور اس اجلاس میں آج اپنی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی، اور اس میں ہمیں الحمدللہ پریس کلب کے لیے 5 مرلے جگہ بھی عنایت ہوئی ہے جو چودھری ثاقب چدر نے دی ہے، ان کے شکر گزار ہیں۔ اور خصوصی طور پہ میں تمام ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کی اور اپنی شرکت کو یقینی اور بر وقت یقینی بنایا۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ آج جو ہم نے الیکشن بورڈ کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی دسمبر کے مہینے سے اپنا الیکشن جو شیڈول ہے میمورنڈم کے مطابق اس پہ مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن بورڈ شفاف اور بہترین الیکشن کروائے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 2 سال کا اقتدار ہمارا اچھا گزرا ہے۔ ہمارے صدر صاحب مخدوم زیدی صاحب، ان کی شاگرد بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے کام بھی بہت اچھے کیے اور 5 مرلہ جگہ بھی پریس کو لے کے دی ہے چودھری ثاقب صاحب سے جی، اور ہم ان کے مشکور ہیں مخدوم صاحب کے، اور انشاءاللہ ہم فخر سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ کام کریں اور ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو کا، روز نیوز کا اور آن نیوز کا، جنہوں نے آج ہمارے آخری اجلاس میں خوب کوریج کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے پریس کلب کا جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں مشکور ہوں میٹرو نیوز، آن نیوز اور روز نیوز کا، جنہوں نے آج ہمارے اختتامی جو ہمارا اجلاس تھا پریس کلب کا، اس کی بہت اچھے انداز سے کوریج دی ہے۔ اور تمام پریس کلب ممبران نے 2 سالہ دور میں سید مخدوم زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بھرپور احسن طریقے سے پریس کلب کو چلایا اور چودھری ثاقب صاحب کا بھرپور طریقے سے استقبال کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کیا گیا، جنہوں نے پریس کلب کے لیے باقاعدہ باضابطہ طور پر 5 مرلے جگہ کا اعلان کیا۔ مدثر حسین، میٹرو ون نیوز، بھوانا۔ ڈی پی او خانیوال سید ندیم عباس نے میاں چنو میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ایس ڈی پی او سرکل میاں چنو اللیار سیفی، ایس ایچ او تھانہ چھپکلا اور تفتیشی افسران سمیت مقامی سائلین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری کے دوران 17 سائلین پیش ہوئے جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے۔ ڈی پی او نے ان کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات بھی جاری کیے۔ ڈی پی او نے ایس ڈی پی او کو سائلین کی درخواستوں پر فوری کارروائی اور ان کی داد رسی کرنے کی ہدایت دی۔ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد سروس کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ ڈی پی او خانیوال سید ندیم عباس کا کہنا ہے کہ تھانوں میں کھلی کچہریوں سے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔
अब रुख करते हैं जड़ावाला का, जहां पर 6 साल बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करके लाश को कमात के खेतों में फेंक दिया गया। मुतालिका पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज अहमद, अपडेट कीजिएगा। के नवाही गांव 649 गाहबे में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक हसनैन बच्चा जो 6 साल की उम्र का था, उसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर खेलने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। बच्चे के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। 2:30 बजे वो स्कूल से वापस आया, 2 बजे घर से निकला है, 2:30 बजे वो जो मुजरम है उनको ले गए हैं फसलों में बाहर, उसके साथ बहुत जुल्म किया है, उसके साथ ज्यादती की है, उसके बाद उसे कत्ल कर दिया है। मेरी हुकूमतें वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ढूंढ रहा है वसीर, सबसे पहले मुझे तस्वीर उस बच्चे की ला के पाऊँ, मेरे बच्चे के शूज़ों की तस्वीर ला के मुझे दिखाइए। कह रहा है बाजी ये तस्वीर देखो उसने हैन की है। मैंने कहा हाँ उसने हैन की। वसी को सबसे पहले कैसे पता, उसे गैप का इल्म था कि वहाँ पे बच्चा पड़ा हुआ है। वसी मेरे बच्चे का कातिल है, वसी ही मेरे बच्चे का कातिल है। मुझे इंसाफ चाहिए। जमीन है ना, वो कह रहा है कि मैंने वसी ये मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं मेट्रो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गांव आए और मजलूम माँ बाप की आवाज़ बने। और दूसरे नंबर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जड़ावाला की पुलिस का, एसपी साहब का, SHO साहब का, कि उन्होंने फौरी तौर पे टीमें तश्कील दी और हमारी पुलिस ने 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर मुलजिमों को ट्रेस किया और उनको शामिल करांगे। सानू साफ दिता जाए। वज़ीर आज़म बादशाह ख़ानदान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार और पुलिस अफसरान से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन सैयद आमर शाह के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में इंतजामिया ज़ख़ीरा 200 के खिलाफ मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से गोदामों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुज्जर ने न्यू रेलवे लाइन रोड, गल्ला मंडी और शहर की खाद की दुकानों और गोदामों पर चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुज्जर ने खाद डीलर्स को फसल की काश्त के दौरान किसानों को हुकूमती निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की शनाख्त फरियाद और कामरान के नामों से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 21 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान अरसे दराज से इस तरह की वारदातों में मुलव्विस थे। शेखोपुरा में एक ऐसा घराना भी मौजूद है जिसमें बाप जैसी दौलत ना होने और गुर्बत की वजह से यतीम बच्चे वालदा के हाथों से बनाई गई बर्फी गली, मोहल्लों और मार्केटों में फरोख्त करके अपने घर का मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा के एक ऐसे गरीब घराने में जिस घराने में बाप जैसी दौलत ना होने की वजह से उनके मासूम बच्चे शेखुपुरा के गली, मोहल्लों, बाज़ारों और मार्केट्स में अपनी मामा के बनाए हुए हाथों की बर्फ़ी बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाने में दिखाई दे रहे हैं। आइए, मेरे साथ उनकी मामा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तो ये कुटन ज़िंदगी किस तरह गुजार रही हैं और हुकूमत और मुखय्यर हज़रात से क्या कहना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी मदद की जाए, खुदा के लिए मेरी मदद की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह पढ़ते हैं और रात को ये जाते हैं बर्फ़ी बेचने के लिए। हालात कुछ ठीक नहीं है और मैं घर बाद में परेशान रहती हूँ कि पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया, कैसे वो घर लौटेंगे। तो मेरी अपील यही है कि मेरी मदद की जाए और मैं घर का चूल्हा अच्छे से जला सकूँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। जी जी, इनका कहना है कि मेरी हुकूमत और मुखय्यर अज़ा से ये अपील है कि हमारी मदद की जाए ताकि जो मेरे मासूम बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल और सेकंड टाइम शेखुपुरा की बाज़ारों और मोहल्लों में और मार्केट्स में बर्फ़ी बेचने पे मजबूर हैं, वो ना बेच सकें और अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। जी, खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए शहनामा।
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्यूटर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के ज़ेर एहतमाम कानपुर में भी ट्रायल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के लिए खेलों की सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं, जिनमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल समेत दीगर खेलों को शुरू कर दिया गया है। इसी पर बता रहे हैं कानपुर से मलिक नौमान अपनी इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर में सटला टाउन ग्राउंड में। यहाँ पर जो है खेलों का जो है टेफ्टा के ज़ेर एहतमाम जो है इनकाद किया गया, जिसमें जो है काफ़ी गेम्स जो है बताई जा रही हैं, जिसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। उसके अलावा हमारे साथ इस वक्त साजिद महमूद खान जो है प्रोफेसर, वो मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी हमारे चेयरमैन टेफ्टा अली सलमान सिद्दीक साहब के विजन के मुताबिक और हमारे स्पोर्ट्स जो इसको डील कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर पूरे पंजाब में शुजात अली खान साहब ने ये हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी है कि टेफ्टा टैलेंट हंट स्पोर्ट्स ट्रायल मुनक्किद किए जाएँ। हमने पूरे ज़िला में मुनक्किद करवा दिए हैं और हमने बाकायदा तौर पर जो बच्चे हमारे 15 साल से ज़ायद हैं उनको हमने सेलेक्ट भी कर लिया, उनकी लिस्टें हमने मुकम्मल कर ली हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये नेशनल लेवल पर इनका बाकायदा कैंप होगा लाहौर के अंदर, वो उसमें भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर साजिद महमूद खान मौजूद थे। इनका कहना है यहाँ का जो टैलेंट है इसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जो है उजागर किया जाएगा। जी अब रुख करेंगे सादिकाबाद का। सादिकाबाद में 21वां इन्विटेशनल सोना गोल्फ टूर्नामेंट टीम रेड ने जीत लिया है। टूर्नामेंट में मुल्क भर से मुख्तलिफ क्लब्स के 200 से ज्यादा गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मजीद बता रहे हैं करमदीन जतोई अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में 21वें इन्विटेशनल सोना गोल्फ टूर्नामेंट टीम रेड ने जीत लिया, जबकि टीम ग्रीन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन के मुकाबलों में मिसेस शाहीन वड़ेज ने पहली पोजीशन हासिल की। ब्रिगेडियर रिटायर तलत महमूद जंजुआ ने गोल्फ टूर्नामेंट को समाजी राब्ते का अहम जरिया करार दिया। गोल्फ जो स्पोर्ट है वो ज़्यादातर लोग इससे शायद वाकिफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा माहौल फराहम करती है कि जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। गोल्फ के इस खूबसूरत मैच में मर्द गर्ल्स के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर फजा माहौल में खेले जाने वाले इस मैच में खवातीन और बच्चों ने खूब सलाहियतों के जौहर दिखाए। खवातीन का कहना था कि दीगर खेलों की तरह गोल्फ के खेल में खवातीन का हिस्सा लेना खुश आइन है। बीइंग अ गोल्फर मैं समझती हूँ कि हर औरत को ना सिर्फ घर के कामों से रूटीन से हट के इस साइड के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो गोल्फ को भी हम लोगों ने प्रमोट करना है। नन्हे गोल्फ के खिलाड़ियों ने भी अपने मौसमाना अंदाज और खेल से सबको अपना गर्विदा बना लिया। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है पटिंग में और मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगता है। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के साथ करमदीन जतोई, मेट्रो 1 टीवी सादिकाबाद। अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम हुनर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। रीजनल मैनेजर पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल सलमान बिन साहिद और ताजरों सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर APO आसम वट्टू और मुजाहिद नसीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सलमान बिन साहिद ने मुख्तलिफ शोबाजात से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले फारिग तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जहां पर मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग देकर गरीब बच्चे और बच्चियों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी अहसन तरीके से गुजार सकें। सादिकाबाद में 174 दुल्हने पिया घर सुधार के इज्तिमाई शादी की तकरीब में जहेज का सामान दिया गया और खाना भी खिलाया गया। तकरीब में दुल्हा दुल्हनों, बारातियों और मौससीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी से। जी मोहम्मद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पर इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर जो है मकामी तंजीब की जानिब से जो है 174 जोड़ों का जो है इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर उनको साथ में जहेज़ का भी इंतज़ाम किया गया है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जब हमारी मकामी तंजीम से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले हम जो है 660 जोड़ों का इंतज़ाम कर चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 174 जोड़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि दूल्हा दुल्हन के साथ आने वाले मेहमानों का भी खाने का इंतज़ाम किया गया है। जी
अब रुख करेंगे शकरगढ़ का। शकरगढ़ में हवाई फायरिंग और साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी करने पर खंडारिया में दुल्हा बारातियों समेत शादी हॉल के बजाय हवालात पहुंच गया। दुल्हा शादी का जोड़ा पहने राह तकती रह गए, दुल्हन वाले बारात का इंतजार करते रह गए। मजीद बताएं कि पुलिस के मुताबिक मौजा खंडारिया में मोहम्मद नईम की शादी के मौके पर हवाई फायरिंग और ऊंची आवाज में गाने बजाने के इत्तला पर पुलिस ने दुल्हा मोहम्मद नईम और फायरिंग करने वाले रिश्तेदारों समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दुल्हन शादी का सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हा की मुंतज़िर, जबकि उसके अहले खाना बारात की राहें तकते रहे। थाना सदर पोली ने दुल्हा समेत 6 बारातियों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। डीएसपी मलिक मोहम्मद खलील का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अल फहद मीडिया ग्रुप के चेयरमैन चौधरी शहजाद असगर ने गुलाम मुस्तफ़ा को अंजुमन पटवारियों का तहसील सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। गुलाम मुस्तफ़ा वालिहा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब सहाफ़ी भाई मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, किसी का भी ज़ाती और जायज़ काम नहीं रोका जाएगा। मैं किसी के भी जायज़ काम जो तहसील किसी भी पटवारी के पास हो हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अब रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी तर्ज पर कायम किया जाने वाला बच्चों का वार्ड हैदराबाद अंदरूने सिंध से आने वाले मरीज बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस वार्ड के मज़ीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। ज़ेर नज़र मनाजिर किसी निजी अस्पताल के नहीं, बल्कि ये मनाजिर हैं सिविल अस्पताल हैदराबाद में फलाही तंजीम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम कायम किए जाने वाले पीट्स यानी बच्चों की बीमारियों के शोबे के हैं, जहाँ इलाज के तमाम जदीद सहूलियात मुफ्त फराम की जा रही हैं। इस शोबे में नौज़ायदा बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों का इलाज माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी किया जाता है। इस शोबे में नौज़ायदा बच्चों के लिए बैनुल अक़वामी मेयार का इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड यानी ICU में वो तमाम जदीद सहूलियात मुफ्त मौजूद हैं जो किसी भी निजी अस्पताल में भारी फीसों के एवज़ फराहम की जाती हैं। माहिर डॉक्टर्स के मायने के साथ साथ आला मेयार की अद्वियात की फराहमी भी इस शोबे का खासा है। इस शोबे में हैदराबाद में पहली बार टेली मेडिसिन की सहूलत भी मुतारिफ कराई गई है। 24 घंटे जारी रहने वाली OPD में रोजाना हैदराबाद और अंदरूनी सिंध से हजारों मरीज बच्चे यहाँ इलाज की घट से आते हैं। जदीद सहूलियात से आरास्ता वेटिंग एरिया और तमाम शोबे में सफाई सुथराई का मेयार देखकर ये अंदाजा करना मुश्किल होता है कि ये शोबा भी सिविल अस्पताल हैदराबाद की इमारत में कायम है। नहीं माशाल्लाह तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिविल लग रहा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे लग रहा है कराची के हॉस्पिटल में सफाई वफाई दवाई वाई हर चीज़ बेहतरीन है माशाल्लाह से। डॉक्टर वगैरह भी अच्छे देख रेख कर रहे हैं और बाहर से भी कोई चीज़ लाने नहीं पड़ रही हमारा को। नहीं, इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। अभी टेस्टों के लिए दिया था, 10 मिनट के अंदर टेस्ट भी हो गई है। अब बच्चे को ड्रिप भी चढ़ी है, इलाज सही चल रहा है, कोई कमी पेशी कोई भी नहीं है उसमें। मज़कूरा शोबा अतफाल की तरह दीगर शोबाजात में भी इस तरह की सहूलियात फराम की जाएँ तो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों के लिए बाइस इत्मीनान होगा। कैमरा टीम के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आरिफ वाला में इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान छापे मारकर ज़ख़ीरा की गई खाद की बोरियां बरामद करते हुए भारी जुर्माने और मुतादिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। बरामद शुदा खाद किसानों में फरोख्त कर दी गई है। आरिफ वाला में इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुख्तलिफ खाद के गोदामों पर छापे मारकर गोदामों में छुपाई गई खाद की हजारों बोरियां बरामद कर ली गईं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लाखों रुपए के जुर्माने और मुतादिद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर असर तारिक वटू के मुताबिक बरामद शुदा खाद जमींदारों में फरोख्त कर दी गई है, जबकि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
कोटद्दू में सूबाई वजीर की कवरेज के लिए जाने वाले निजी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर से बासा ठेकेदार ने गुंडागर्दी करते हुए कैमरे, मोबाइल और चैनल्स के लोगो भी छीन लिए। मजीद बताएं कि हेड तोसा बैराज टोल टैक्स के बासा ठेकेदार ने निजी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और संगीन नताइज की धमकियां भी देता रहा। थाना सदर कोटद्दू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बासा ठेकेदार की कार से कैमरे, मोबाइल और चैनल्स के लोगो बरामद कर लिए। बासा ठेकेदार पुलिस एहलकारों के सामने भी सहाफियों को धमकियां और सामान छीनने का एतराफ़ करता रहा, जबकि पुलिस एहलकारों ने सियासी शख्सियत के फ्रंटमैन ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न की और वापस चले गए। दीगर खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। साहिवाल के इलाके थाना कला मंडी में स्कूल जाने के लिए घर से निकलने वाली 2 बच्चियां रास्ते से ही अगवा कर ली गईं। हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बच्चियों का कोई सुराग ना मिल सका। वालिदैन की जानिब से एहतजाज भी जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे राना हाफिज इमरान से। जी बताइएगा राना हाफिज इमरान। जी, मैं इस वक्त थाना गल्ला मंडी के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्कूल जाते हुए 16 और 18 साल की बच्चियां अगवा हो गई है, जिनका अभी तक कोई मालूम नहीं हो सका। थाना गल्ला मंडी ने FIR तो दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक बच्चियां बरामद नहीं की। उनके वर्सा एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते आइए हम उनसे उनके वालिद से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। मैं ये कहना है कि मैं FIR तो कटा ली है, लेकिन मैं थाने जाना, मेरी कोई बंदा गाल नहीं सुनता, लेकिन तसल्ली दी जा रहा है। कोई डेटा आ रहा है जी, कुछ कदी कुछ आ रहा है जी, कदी पुलिस लैन बुलाते ने मैनू, कदी किते बुलाते ने मैनू। लिहाजा अपनी बच्चियां चाहिए ने, मैं मेहरबानी करो, मैं चीफ साहब से यही रिक्वेस्ट करना हूँ और अपने खुली कचहरी में हाजिर होया वहाँ। मेरी कोई अर्ज नहीं हाले तक सुनी गई। 9 दिन हो गए मेरी बच्चियां गई। ये है कि मेरी बच्चियां बरामद किया जाए बस। ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਇਹੀ ਕਹੀ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ कार्रवाई करन। हमारे साथ मोहल्ले वाले भी मौजूद हैं, मोहल्ले इलाका के मुकीन भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालिदैन के साथ तावन होना चाहिए, दादरसी होनी चाहिए। परेशान है ये 8 दिन से 9 दिन से तकरीबन परेशान है। ठीक है जी। मुख्तलिफ घरों के चक्कर लगा लगा के, महकमे के चक्कर लगा लगा के तंग आए हुए हैं और मेरी आला हकाम से अपील है कि इनके साथ दादरसी की जाए और इनकी मदद करके बच्चियां इनको वापस दिलाई जाएं जहां भी हैं। बराए मेहरबानी। जी, कैमरामैन टीम के साथ राना हाफिज इमरान, मेट्रो 1 न्यूज साहिवाल। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से ही। साहिवाल में सब इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन डिवीजन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए जलसे का इनेकाद किया। जलसे से सदर आमिर, नदीम, लुकमान, अरशद और दीगर ने भी खिताब किया। आपको बताएं कि मुकर्ररीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2019 में लाहौर धरने पर हम सबसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। डिविजनल सदर सैयद मसूद सफदर शाह ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम हुकूमत को 4 दिन का टाइम देते हैं। अगर हमें टेक्निकल अलाउंस और हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो पंजाब असम्बली के बाहर दमादम मस्त कलंदर होगा और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। जलसे में पंजाब भर से आए हुए सैकड़ों सब इंजीनियर्स ने शिरकत की। अब रुख करेंगे ठुल के रिहायशी 12 साला सुहेल अहमद लाशारी को लापता हुए 3 रोज गुजर गए, लेकिन पुलिस ताहाल कोई सुराख ना लगा सकी। लाशारी बरादरी और वर्सा की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ठुल नबी बख्श बलूच से। जी बताइएगा। बिल्कुल, हम प्रेस क्लब के सामने मौजूद है। गुज़श्ता 4 दिनों से लाशारी बिरादरी के नौजवान जो ठुले थाने घर से लापता है, आज उनके वर्षा को तरफ से प्रेस क्लब सामने एहतजाज है। जी मरीज उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, पहले हमारे शहर ठुल में बदअमनी, डकैती वगैरह चलती थी, अब हमारे जो आदमी उठाए जा रहे हैं और अगवा किए जा रहे हैं।
हम SSP जैकाबाद से मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि ये ठुल का जो अमन ख़राब हो रहा है, यहाँ रोज़ की बुनियाद पे अगवाखोरी हो रही है और आप खामोश बैठे हैं। SHO ठुल से हम गुजारिश करते हैं कि हमारा 3 दिन से लड़का गुम है और आपने कुछ भी नहीं किया। हमने आपके तरफ से NSC भी थाने में जमा करवाई है और आपने कुछ भी जांच पड़ताल नहीं की। हम मुतालबा करते हैं कि हमारा सोहेल अहमद लाशारी जल्द से जल्द बाज़ेयाब किया जाए। भी है और ठुल के अंदर बदअमनी भी बढ़ गई थी, उस बदअमनी का भी सबब हो सकता है। आप देख रहे हैं हमारा बच्चा 15 साल का है, वो मजदूरी के लिए मिल पर मजदूरी करता था। जब वो मजदूरी से वापस आ रहा था तो उसको किसने किडनैप किया है। जहाँ ऐसा कोई दहशतगर्द होगा जो दहशतगर्द इसको अगवा करके ले गए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम SSP जैकाबाद से गुजारिश करते हैं कि ठुल के अंदर बदअमनी के जो भी वाक़यात है, अगवा फुर्लट के जो भी वाक़यात हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए। ठुल से के सेक्शन थाने के करीब कोट लुत्फुल्लाह के गांव से बच्चा, मासूम बच्चा सोहेल अहमद लाशारी 3 दिन से लापता है। उसके वरसा और उसके भाई, उसके बहनें सरापा एहतजाज हैं और पुलिस को इत्तला भी किया गया है। अफसोस का कहने के मुताबिक पुलिस सेक्शन पुलिस ने कोई भी अमल नहीं किया और वरसा सरापा एहतजाज है। ये शहर में आम तौर पर हो रहा है कि ठुल शहर का अमन खराब हो गया है। जी बिल्कुल, आपने शहरों की बातें सुनी। शहरों ने ये कहा कि 3 दिन से लड़का लापता है। इन्होंने DIG लाड़काना SSP जैकाबाद शमाइल मलिक से मुतालबा किया है कि लड़के के वारसों को लड़का वापस मिलकर उनको घर को सुकून मिला जाए। कैमरामैन टीम के साथ नबी बख्श बलोच, मेट्रो 1 न्यूज़। मंचनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने कहा कि साइलिन के मसाइल सुनकर उन्हें फौरी हल किया जाना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हमें कोशिश है जितने भी साइलिन आए हैं उनके मसाइल को फौरी हल करवाएं। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज कचहरी 2 दिन लगाई जाएगी। फैसलाबाद में 7 मुसल्लह डाकू एक घर में डकैती की नियत से दाखिल हुए और मज़ाहमत करने पर शदीद फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये मजरूब कर दिया है। अहले खाना के जागने और शोर वेला करने पर डाकुओं ने अंधी फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मेर अली वल्द जाफिर हुसैन और हाजरा बीबी जौजा जाफिर हुसैन जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। शदीद फायरिंग की जद में आकर दोनों जो मर्द खवातीन हैं वो शदीद जख्मी हुए थे, जिनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जनावाला मुंतकिल किया गया है। ताहम हालत ज़्यादा ख़राब होने पर खातून जो हैं हाजरा बीबी, उनको DHQ फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। जबकि पुलिस स्टेशन और रुड़ाला रोड की जो पुलिस है वो SHO रुड़ाला रोड इमरान जावेद की सरबराही में मौका पर पहुंच गई। जबकि इस मौके पर बात करते हुए SHO रुड़ाला इमरान जावेद का कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो मुलजमान हैं वो कानून की गिरफ्त में होंगे। जबकि जो रिहायशी हैं जग नंबर 368 गाफबे के, उनकी जानिब से भी शदीद इस मौका पर एहतजाज किया गया है कि मुलजमान ने जो उनके मजरूब हैं, उनके अफराद दोनों हैं, उनको जख्मी किया। उनको जल्द से जल्द उनका मुतालबा था कि गिरफ्तार किया जाए और कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। जी। जलालपुर भटिया में बल्दिया मुलाजमी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर भर का कूड़ा करकट वजीराबाद रोड पर डंप करना शुरू कर दिया। शहरी भी अपने मवेशियों का फसला सड़क के किनारों पर फेंकने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद। जी बिल्कुल, बल्दिया जलालपुर भटिया की नैली खुलकर सामने आई है। शहर भर का कचरा जलालपुर भटिया वजीराबाद रोड पर डंप करना शुरू कर दिया है, जिससे उठने वाला ताफुन न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए अजियत का सबब है बल्कि शहरियों के लिए भी वबाले जान बन चुका है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ कचरे के ढेर हैं तो दूसरी जानब करीबी रहायशियों ने देखा देखी जानवरों का फुजला भी इसी सड़क किनारे फेंकना शुरू कर दिया है, जिसमें जहरीले अशरातुल अर्ज और मच्छर परवरिश पाने लगे हैं, जिससे डेंगू बुखार और दीगर वबाई अमराज फैलने का खतरा है। शहरियों ने वजीर बल्दियात और जिले इंतजामिया से अपील की है कि इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए शहर से बाहर किसी मुनासिब जगह डंपिंग पॉइंट बनाया जाए ताकि इस सड़क के साथ साथ शहर की खूबसूरती बहाल हो सके। जी।
शकरगढ़ में बल्दिया की गफलत लापरवाही से महल्ला मंसूर कॉलोनी की गलियों नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी जमा हो गया है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला नारोवाल, तहसील शकरगढ़, मोहल्ला शुमार रोड, मेन मंजूर कॉलोनी, जो एक वाहद मेन गली है। इस मोहल्ले की जो तकरीबन 2-3 हज़ार आबादी पर मौजूद है। मेरे साथ इस इलाके के जो लोग हैं, मकान हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। मंजूर कॉलोनी दे विच कोई भी सारे दा महल्ले दा कोई वाली वारस नहीं सर, ना कोई सफाई वाला आंदा सर, ना कोई इत्थे सफाई का इंतजाम है सर। जो बारिश पैंदी है सर, बहुत पानी जिहड़ा ना सड़क दे विच खड़ा हो जाता ते सर सानू बहुत परेशानी होंदी है मस्जिद जान दी भी ते नमाज पढ़ने की सर बहुत परेशानी है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? तो सफाई वाला कोई नहीं आता, सफाई नालों में पानी भरा होता है। सर जी सफाई कोई नहीं हो रही साढ़े महल्ले, इन्नी गंदगी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ठीक है, तो जे ही मतलब इसी अगे जाने हैं, किसी अगे जाने, कोई भी नहीं सुनता साड़ी गल। जी आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि हर मोहल्ले में गंदगी है। हम अपील करते हैं कि इसका काम किया जाए। कहरोड़ पक्का यूनियन काउंसिल हरिंजादा दफ्तर का सेक्रेटरी और चपरासी अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गया। कई दिन दफ्तर में हासिल नहीं होता बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए आने वाले साइलेंट सेक्रेटरी और चपरासी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन खान रिंद, बताइएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कहरोड़ पक्का के इलाका रेंज जादा के यूनियन काउंसिल दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ के जो इलाका मुकीन हैं वो यहाँ के सेक्रेटरी और यहाँ के चपरासी के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज हैं। इनका क्या कहना है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी भाई बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? असां इस टाइम बाल का नाम दर्ज करवावण आई, कोई नकल कटवावणी आई, ये डेढ़ गिनो 10-10.5 थींदे पन, ना सेक्रेटरी है ना चपरासी है। क्या करूं, हुकूमत को अपील ही कर सकते हैं, रो ही सकते हैं, भी ऐसा क्या कर सकते हैं। जी मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए और इलाका मुकीन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि उनको टाइम पे हाजिरी होनी चाहिए। हर चीज़ जो है ना परेशानी के बहस उनको आवाम को तकलीफ होती है। जो भी आता है वो यहाँ ना दफ्तर वाले होते हैं, ना सेक्रेटरी होता है, ना चौकीदार होता है। कोई काम भी हो ना काम टाइम पे नहीं होता, इसलिए परेशानी आती है। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जब सैलीन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर ना सेक्रेटरी मौजूद होता है और ना यहाँ का चपरासी होता है। यहाँ के दफ्तर के जो सफाई सुथराई है वो यहाँ के जो हमसाए हैं वो सफाई सुथराई यहाँ की कर रहे हैं। इन्होंने जो है डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को जो है कई दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने जो है यहाँ के इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर लोधना से फौरी तौर पर जो है सेक्रेटरी और चपरासी को जो है यहाँ पर सख्ती से जो है ड्यूटी में भेजने की जो है तलकीन की है। जी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा किया। अब्दीदा बुजुर्ग शहरी समेत दीगर साइलिन के मसाइल सुने और बद इंतजामी पर सर्विस सेंटर इंचार्ज ज़ीशान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद का अचानक इरादी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, शहरियों के मसाइल सुने, बंद इंतजामी पर सेंटर इंचार्ज ज़ीशान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। सेंटर में आम शहरियों की मुकम्मल रहनुमाई की जाए, मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर किया जाए और आवाम को किसी किस्म का शिकायत का मौका न दिया जाए। इस मौका पर कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में दही मरकज माल बनाए गए हैं, जहाँ पर घर की दहलीज पर आवाम को गोशवारे मिलेंगे, यहाँ तक कि रजिस्ट्री इंतकाल भी हो सकेंगे, जिससे आवाम को फायदा होगा। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। ननकाना साहब में खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले डीलर्स और महंगी खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद कामरान डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब के साथ मौजूद हैं। जी कामरान बताइएगा, क्या कहना है उनका? जिले इंतजामिया की जानब से खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले जखीरा अंदोजों और खाद महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब परवेज वडैसा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। जी जो चूँकि खाद की डिमांड का ये सीज़न है, तो इस सीज़न के दौरान ये मसनूई किल्लत जो पैदा की जा रही थी, बाकी ज़िलों की तरह ननकाना साहब में भी इंतजामिया ने भरपूर एक्शन किए हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो खाद है वो किसानों को इस वक्त मुयस्सर हो
اور سرکاری ریٹ پہ میسر ہو. اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ ننکانہ نے پچھلے چند دنوں میں 21 لاکھ سے زائد اماؤنٹ کا فائن کیا ہے ہولڈنگ کرنے والوں کو اور زائد نرخوں پہ فروخت کرنے والوں کو. اسی طرح 16 بندے گرفتار ہوئے ہیں اور کوئی 13,000 کے قریب بوریاں جو ہیں وہ ہم نے برآمد کر کے تو سرکاری نرخ پہ فروخت کی ہیں. ان لوگوں کو جرمانہ کیا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ یہ کھاد جو ہے وہ کسانوں کو سرکاری ریٹ پہ میسر آئے اور وافر میسر آئے. کہنا تھا کہ جو کھاد مافیا ان کے خلاف کریک ڈاؤن مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا. جی شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.